सो हेलो गाइज, ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ स्प्रिंग बूट क्रैश कोर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हम लोग ने प्लान किया है कि हम लोग एक कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशंस मटेरियल्स फॉर द जावा डेवलपर हम लोग बनाएंगे, जिससे आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो अपने कंसेप्ट को। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपको 2 to 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है जावा डेवलपर के लिए, आप ट्राई कर रहे हो, तो अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो आप हमारे वीडियो को वॉच कर सकते हो और क्विकली आप सारी चीज़ों को रिवीजन कर सकते हो। क्विकली आपको कुछ नहीं करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे द थर्ड चैप्टर्स विच इज स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस, which is very very important. Okay, so let's start now. So today in this video we are going to talk about auto configurations. So let's start with Spring Boot and let's discuss what is a Spring Boot, why a Spring Boot, why we have introduced the Spring Boot, right? So a Spring Boot previously, like before a Spring Boot, we are using the Spring framework and we are doing all those things, right? But why a Spring Boot came? So a Spring Boot builds on top of the Spring framework only to simplify the application development, right? So multiple things we can simplify. Like before a Spring Boot, developers had to configure multiple things like XML configurations they have to do, server configurations they have to do, dependency configuration they have to do, bin configurations they have to do. So there is multiple things which is have to do by the developer itself, right? So that is time consuming task. So this made a Spring Boot complex and time consuming, right, to start. And a Spring Boot solve this using the multiple features. So in a Spring Boot we have added multiple features which is introduced in the Spring Boot that are very very important, right? So if I talk about auto configurations, if I talk about embedded server, if I talk about a starter dependency, if I talk about minimal configurations, so those are indirectly helping to start a Spring Boot application quickly. Okay, so if I talk about like minimal Spring Boot applications, what you have to do? So automatically whenever you are going to create a Spring Boot applications, it will create the main method and in the class public class applications. In top of that we are using one annotation called a Spring Boot application annotations, which is very very important. Okay, and this is the basic structure it will create and it will run automatically and it will solve your multiple problems which we have defined here. Okay, now this single class is enough to start a web applications. There is nothing else we required. So developers previously while using the Spring framework facing these difficulties, so because of that someone come up with a Spring Boot framework on top of the Spring framework, and they have provided those features to reduce the boilerplate configurations, boilerplate codes, everything, right? So let's go one by one and try to understand. Frequently maybe developer will ask you, interviewer will ask you some questions. What is a Spring Boot? So you have to tell simple words. A Spring Boot is a framework that is simplify a Spring application development by providing the auto configurations, embedded servers, like productions ready of the features. So those are the main features which is provided by the Spring Boot. So that's it. You have to tell like that. Then after maybe he will ask what is auto configurations. So you have to explain auto configuration means a Spring Boot automatically configure the applications based on the dependency present in the class path. For example, as a developers, our responsibility is go to the pom.xml or Gradle files and add your dependency which is required for you, right, to develop the application. For example, I am going to write a CURD operations applications with using the Spring Boot. So what I will do, I will add the, if I am going to use MySQL drivers or maybe I am going to use Oracle drivers, PostgreSQL, anything, MongoDB. So based on that I will add my jars drivers. Then after I will add the, if I am going to use JPA, JDBC template, based on that I will add those dependency. After that I will go and I will add Spring Boot starters, right? If web MVC, then I will add web. If not required, then I can go with some dev tools. I will add Lombok,
right? So those are the dependency which is generally required, so I will add those and I will proceed further, right, to development of my applications. In the same way, what you have to do, if you add any dependency, this dependency in your pom.xml, it will automatically pick those dependency and it will configure it. So for example, if a developer added one dependency called Spring Boot Starter Web, that's it, one dependency he added. So in the project include the Spring Web dependency, a Spring Boot automatically configures the what? Dispatcher servlet, embedded servers, web configurations. You don't want to do these things manually, right? Previously in the Spring frameworks we are doing, but after Spring Boot we don't want to do. It's automatically happen. Why? Because of you added one dependency, Spring Boot Starter Web. That's it. So Spring Boot automatically starts an embedded server like Apache Tomcat. So this is the default servers. So whenever interviewer asks you, okay, tell me if Spring Boot applications configure automatically embedded server, then which server it will configure? So you can tell Tomcat server. Okay, let's go forward. So maybe what is the auto configurations in the Spring Boot? Frequently they have asked some follow-up questions, right? So auto configurations is automatically configure the Spring Beans based on the library present in the project class path. That's it. A Spring Boot application annotations. What is the use of it? Why we are annotating in top of the main methods here? If you see public class application and inside this having a main method. So in top of the class main methods we have written @ Spring Boot applications annotations. Why is it? What is the use of it, right? So in that case, if you go in depth and if you try to understand, yeah, really why we are doing like that, why these annotations. So this Spring Boot application is the main annotations used to start the Spring Boot applications. So if you are not using a Spring Boot application, then might be your application will not start, right? So you have to focus in that point of view also. So let's understand कैसे हमारा जो application है, it is actually combinations of 3 annotations. जो हमारा application है वो 3 annotation का combination होता है. जैसे कि Spring Boot application internally 3 annotations configured है, जैसे @configuration, @enable auto configuration, @component scan. तीनों का अलग अलग बिहेवियर है, अलग अलग वर्क है जो वो प्रोसीड करता है. इन तीनों का बिहेवियर समझ लेते हैं, क्या पर्पस है इनका यूज करने का. तो @configuration का यूज होता है मार्क द क्लास एज ए कॉन्फ़िगरेशन. इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस जो ऑटोमेटिकली कर लेता है. कंपोनेंट स्कैन का मतलब स्कैन कंपोनेंट एंड बीन्स, जो भी आप पैकेज इसमें प्रोवाइड करा दोगे बाय डिफ़ॉल्ट रूट पैकेज को ले लेता है. लेकिन अगर आप कोई पैकेज प्रोवाइड कराते हो तो सिर्फ और सिर्फ उस पैकेज को और उसके सब पैकेज को स्कैन करके जो भी बीन्स क्रिएट करना होगा उसको क्रिएट कर देगा. एग्जाम्पल के लिए बात करें तो मान लो ये एप्लीकेशन क्लास है, उसके ऊपर एनोटेशंस यूज किया गया है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन. कुछ ऐसे फ्रीक्वेंटली इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चंस लाइक व्हाट डज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन डू इंटरनली. ये जो एनोटेशंस है क्या करता है इंटरनली, क्या काम है इसका. सो यू हैव टू टेल. It combines @configuration, @enable auto configuration, @component scan to configure the Spring Boot application automatically. That's it. This is the answer you have to give. Next, what is the enable auto configurations? He will ask follow-up questions, right? Then tell me what is enable auto configurations. So enable auto configurations tell Spring Boot automatically configure the bean based on the project dependency. जो भी हम डिपेंडेंसी अपने प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं उसके बेसिस पे ही ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमें दे देगा. एग्जाम्पल, इफ द प्रोजेक्ट हैज ए स्प्रिंग डेटा जेपीए डिपेंडेंसी, स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर द डेटा सोर्स. मान लो जब भी आप स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन क्रिएट करोगे तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमें कनेक्शन कैसे क्रिएट करना है, हमें ड्राइवर कैसे लोड करना है. ये सारे झंझट आपको नहीं करना है. आपको सिर्फ स्प्रिंग डेटा जेपीए का डिपेंडेंसी जाकर के डाल दो, उसके बाद आप MySQL ड्राइवर जाकर के डाल दो अपने pom.xml में या gradle.files में, और उसके बाद
जो भी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है डेटाबेस के लिए वो कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में रख दो, ऑटोमेटिकली वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा और आपके लिए डेटा सोर्स अवेलेबल हो जाएगा, आप उसका यूज कर सकते हो। सो डेटा सोर्स, एंटिटी मैनेजर्स, ट्रांजैक्शन मैनेजर्स, ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा जैसा ही आप ऐड करोगे क्या, इस पार्टिकुलर डिपेंडेंसी को, स्प्रिंग डेटा जेपीए को आपको मिल जाएगा डेटा सोर्स, एंटिटी मैनेजर, ट्रांजैक्शन मैनेजर। सो दिस रिड्यूस द मैनुअल कॉन्फ़िगरेशंस। एग्जांपल, इंटरनल बिहेवियर, डिपेंडेंसी डिटेक्टेड, ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस एक्टिवेटेड। कुछ ऐसे फॉलोअप क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि हाउ डज स्प्रिंग बूट नो विच कॉन्फ़िगरेशंस टू लोड। सो जब हम बात करते हैं बहुत डेप्थ में कि हाउ स्प्रिंग बूट हमें समझता है कि किस कॉन्फ़िगरेशंस को हमें लोड करना है, वो कैसे डिसाइड करेगा। तो इस केस में क्या होता है कि स्प्रिंग बूट यूज द फाइल कॉल्ड मेटा INF स्प्रिंग डॉट फैक्ट्री, जो कि उन्होंने ऑलरेडी इंटरनली बना के रखा हुआ है। दिस फाइल कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस। उनके पास जो भी इनबिल्ड डिपेंडेंसी है उसको रजिस्टर करके रखा हुआ है, लिस्ट ऑफ द क्लासेस दैट स्प्रिंग लोड ऑटोमेटिकली, राइट। और उसके बाद जो आपने pom.xml में यूज किया है तो उसके बेसिस पे उसको लोड करके इंजेक्ट कर देगा। स्टार्टर डिपेंडेंसी, या बहुत सारे इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं, ओके टेल मी व्हाट आर द स्टार्टर डिपेंडेंसी वी हैव। सो स्प्रिंग बूट प्रोवाइड ए स्टार्टर डिपेंडेंसी टू सिंप्लीफाई द डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, राइट। सो कुछ डेवलपर, कुछ इंटरव्यूअर मैंने देखा है कि जो पूछते हैं, ओके प्रिंस नाउ टेल मी why they have given the starter dependency, why not given the individually all those dependency, right। सो अगर मैं बात करूं कि मान लो आप स्प्रिंग बूट, जब स्प्रिंग फ्रेमवर्क जब आप यूज करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता था, एक एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको कम से कम 7 to 8 जार्स आपको मेवेन रेपोजिटरी से डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना पड़ता था, राइट, जो कि बहुत बड़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क था। लेकिन उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इन्होंने क्या किया, सोचा कि ठीक है अगर बंदा वेब एप्लीकेशन बना रहा है तो ए डिपेंडेंसी इसको चाहिए ही चाहिए, तो उन्होंने क्लब कर दिया। मान लो ये बंदा ए डिपेंडेंसी यूज कर रहा है, इसका मतलब कि इसको डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो ए डिपेंडेंसी इसको चाहिए, तो उन्होंने क्लब करके एक स्टार्टर डिपेंडेंसी दे दिया। उसी तरह से जब भी आप स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब का यूज कर रहे हो तो वेब एप्लीकेशन के लिए स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए मतलब डेटाबेस एक्सेस कर रहे हो, स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी मतलब आप अपने एप्लीकेशन में सिक्योरिटी ऐड कर रहे हो, स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट यानी कि आप JUnit टेस्ट केस लिखने वाले हो मोकिटो के थ्रू, तो उससे रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसी होगा ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, जिससे डेवलपर को एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करके जा करके जो भी इंडिविजुअल डिपेंडेंसी है उसको सर्च कर करके ला करके नहीं डालना पड़ेगा, कहाँ पे, pom.xml में। ओके लेट्स गो फर्दर एंड दिस इज द स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब डिपेंडेंसी। अगर आप ऐड करते हो अपने pom.xml में तो क्या होगा, दिस इंक्लूड स्प्रिंग MVC जार, जेसन लाइब्रेरी जार, वैलिडेशंस लाइब्रेरी जार, एम्बेडेड सर्वर जार, इतना सारी चीज़ें आपको एक डिपेंडेंसी से ही मिल जाएगा। और इसके अंदर बहुत सारे डिपेंडेंसी है, इंटरनल डिपेंडेंसी जिसको हम बोलते हैं। Frequently asked interview questions, what are the Spring Boot starters? What is a Spring Boot starter? So starters are predefined dependency bundle that include a commonly used library for the specific features, that is called a Spring Boot starter bundles that include the commonly used library. Okay, बहुत इंपॉर्टेंट, application dot properties फाइल क्या होता है, कैसे कॉन्फ़िगरेशंस काम करता है। सो स्प्रिंग बूट अलाउ कॉन्फ़िगरेशंस यूजिंग द application dot properties फाइल्स, जिसमें हम अपने डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, सर्वर डॉट पोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सो दिस प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर सर्वर डॉट पोर्ट, डेटाबेस कनेक्शन, एप्लीकेशन सेटिंग, राइट। follow-up questions. So where does Spring Boot read configuration properties from? So Spring Boot read configuration from these places, which is it's a predefined file names, which is application.properties, application.yml, environment variables, command line arguments. This is the 4 place from that you can give the input to your application configuration details or maybe anything input data.
application.yml configurations, Spring Boot also supports YML configurations format. Example, इस फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा सर्वर पोर्ट, फिर पोर्ट नंबर, डेटा सोर्स। लेकिन यहाँ पे क्या था, डायरेक्ट हम लोग लिख रहे थे spring.datasource.url। यहाँ पे आपको लिखने में थोड़ा सा spring.datasource.url ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होता है। एडवांटेज क्या है YML का, बेटर रीडेबिलिटी है, सपोर्ट हेरारिकल कॉन्फ़िगरेशंस, ये बेनिफिट है उसका। फिर से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू लेवल पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन application.properties एंड application.yml। तो अगर हम बात करें application.properties का, तो इसमें क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है। application.yml क्या होता है, सब की वैल्यू होता है। YML इज मोर स्ट्रक्चर्ड एंड ईजियर फॉर द कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशंस। चलो कुछ और बात करते हैं, कंडीशनल ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं। अगर हम बात करें कंडीशनल ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डेप्थ में हैं, जैसे कि स्प्रिंग बूट यूज द कंडीशनल नोटेशंस टू एक्टिवेट कॉन्फ़िगरेशंस ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई क्लास तब यूज करना चाहते हो जब वो एग्जिस्ट हो, तो आप उसके ऊपर यूज करोगे कंडीशनल ऑन क्लास, कंडीशनल ऑन मिसिंग बीन, कंडीशनल ऑन प्रॉपर्टीज, राइट। सो कंडीशनल क्लास डेटा सोर्स क्लास होता है, दिस कॉन्फ़िगरेशन एक्टिवेट ओनली इफ डेटा फॉर सोर्स इज अवेलेबल्स। तो इस टाइप के आप बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन अपने एप्लीकेशन में कर सकते हो। कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस हैं, उसको देख लेते हैं। व्हाई डज ए स्प्रिंग बूट यूज द कंडीशनल कॉन्फ़िगरेशंस? बिकॉज इट्स इंश्योर ओनली नेसेसरी बीन्स आर क्रिएटेड, improving the startup times and avoiding the conflict. करेक्ट। रियल इंटरव्यू सिनेरियो, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि ओके टेल मी, ए डेवलपर ऐड ए स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब डिपेंडेंसी एंड सडनली द एप्लीकेशन स्टार्ट्स एन HTTP सर्वर, राइट। सडनली कैसे स्टार्ट हो जाएगा, जब आप ऐड करोगे तो डेफिनेटली स्टार्ट होगा। स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली स्टार्ट द एम्बेडेड सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज ट्रू, बिकॉज हम एप्लीकेशन एम्बेडेड सर्वर यूज करते हैं किस में, जब आप इस डिपेंडेंसी को यूज कर रहे हो स्टार्टर वेब को। सिनेरियो 2 क्वेश्चंस, ए प्रोजेक्ट कंटेन बोथ टॉमकैट JT डिपेंडेंसी। अब देखो, अगर हमारे पास एक एप्लीकेशन है और उस एक एप्लीकेशन में आप दो डिपेंडेंसी डाल देते हो, टॉमकैट का भी और JT का भी, दोनों सर्वर है, तो इसमें क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो इससे क्या होगा, योर स्प्रिंग बूट में फेल टू स्टार्ट ड्यू टू द मल्टीपल सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस। तो मल्टीपल सर्वर एट ए टाइम आप नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते हो स्प्रिंग बूट के अंदर। सॉल्यूशन क्या है, एक्सक्लूड वन सर्वर डिपेंडेंसी। तो आपको pom.xml में एक टैग आता है एक्सक्लूड में आपको डालना पड़ेगा कि आप किसको यूज करना नहीं चाहते हो। मान लो JT को नहीं करना चाहते हो या टॉमकैट को, तो उसको वहाँ पे एक्सक्लूड कर दोगे उस डिपेंडेंसी को, तो आपका काम फिर से होने लगेगा। ए डेवलपर डिफाइंस ए कस्टम बीन दैट कॉन्फ्लिक्ट विथ ए ऑटो कॉन्फ़िगरेशन बीन। तो मान लो कि एक डेवलपर है जो एक बीन क्रिएट किया और वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किससे, जो ऑलरेडी ऑटो कॉन्फ़िगर्ड बीन है, जो कि हमारे स्प्रिंग कंटेनर ने किया है। तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि स्प्रिंग बूट थ्रो द बीन डिफिनीशन ओवरराइड एक्सेप्शंस, तो उसको एक्सेप्शन मिलेगा। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक यूज कर सकते हैं @कंडीशनल ऑन मिसिंग बीन। अगर मिसिंग है तभी हमारा यूज करो, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको यूज कर लो। चलो नेक्स्ट क्या है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर फ्लो। सो इम्पोर्टेंट इंटरव्यू टॉपिक्स क्या होता है, बहुत सारे इंटरव्यूअर को मैंने पर्सनली देखा है कि वो पूछ देते हैं कि ये बताओ जब स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन हम स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या स्टेज होता है, कैसे स्टार्ट होता है, क्या उसके बाद होता है, एग्जैक्टली क्या होता है ये बताओ। सो व्हेन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्ट, मेन मेथड कॉल होता है, मेन मेथड इंजेक्ट होता है, स्प्रिंग एप्लीकेशंस डॉट रन मेथड कॉल होता है, फिर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, फिर उसके बाद ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस अप्लाइड होता है, फिर बिन क्रिएट होता है, फिर एम्बेडेड सर्वर स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद आप एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। फ्रीक्वेंटली कुछ क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इंटरनली व्हेन स्प्रिंग बूट स्टार्ट, सो दिस इज द स्टेप विच वी हैव डिस्कस, राइट, ये होता है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कैन वी डिसेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस, स्प्रिंग बूट में आप ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को डिसेबल कर सकते हो, यस आपके पास है, कैसे, तो एक एनोटेशन यूज करोगे, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जहाँ पे है वहाँ पे एक्सक्लूड लिख करके डेटा सोर्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन डॉट क्लास लिख दोगे, दैट्स इट। तो उसको क्या करेगा, एक्सक्लूड कर देगा, डिसेबल कर देगा।
हाउ कैन वी सी विच ऑटो कन्फिग्रेशंस आर अप्लाइड, डिबग मोड लगाओ आप, डिबग इक्वल टू ट्रू करो, स्प्रिंग बिट विल शो यू ऑटो कन्फिग्रेशन रिपोर्ट्स इन लॉग्स, वहाँ से आप देख सकते हो. Why does a Spring Boot starter faster than the traditional Spring app? Because it's use the auto configurations, embedded servers, pre-configured dependency. इसके वजह से Spring Boot starter फास्टर होता है ट्रेडिशनल स्प्रिंग ऐप से. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. कैन वी ओवरराइड द स्प्रिंग बूट ऑटो कन्फिग्रेशंस? यस, इफ डेवलपर डिफाइन देयर ऑन बीन स्प्रिंग बूट बैक ऑफ फ्रॉम द ऑटो कन्फिग्रेशंस. अगर आप खुद का बिन डिफाइन कर रहे हो तो ऑटो कन्फिग्रेशन फिर क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा. सो हम ओवरराइड कर सकते हैं स्प्रिंग बूट ऑटो कन्फिग्रेशन को. What is the role of a Spring Boot application class? So Spring application class is a bootstrap. The entire Spring Boot applications लाइफ साइकिल को हैंडल करता है. ठीक है, तो एक डिटेल्स में हमारा हुआ कि हाँ ये हमारा, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. Why does Spring Boot start faster than the Spring apps? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये है, हाउ टू डिसेबल ऑटो कन्फिग्रेशंस, what happens internally when a Spring Boot start, important questions, scenario based question कुछ important है. फिर कंडीशनल और ऑटो कन्फिग्रेशंस इंपॉर्टेंट है. प्रॉपर्टीज फाइल्स YML फाइल में डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है. उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट है इनेबल ऑटो कन्फिग्रेशंस एनोटेशन क्या करता है, स्प्रिंग बूट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन नोटेशन क्या करता है, इंपॉर्टेंट है. ऑटो कन्फिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर उसके बाद व्हाट इज द स्प्रिंग बूट फीचर्स. सो स्प्रिंग बूट क्या सोल्व करता है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी था स्प्रिंग में ताकि उसको सोल्व करता है और आया स्प्रिंग बूट. ये दोनों आपको याद होना चाहिए. ओके, दैट्स इट. आई होप यू अंडरस्टूड. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस let me know and put the comment. Thank you so much guys.